Samajwadi Party leader S.T. Hassan, who has now sparked outrage, where he seems to be calling Uttarkashi tragedy as an act of God, claiming that it was God's way of delivering justice after a particular faith was insulted. Till now, 5 people unfortunately have lost their lives in the flash floods. Yet, when it comes to the Samajwadi Party leader, somehow seems to be injecting a communal angle into a human tragedy. Listen in. ये आपदाएं क्यों आ रही हैं आखिर? तभी हमें इस बात पे विचार करना चाहिए। हमने जंगलों के साथ बड़ी नाइंसाफी करी, जंगलों को कटान और तमाम चीजें हो रही हैं। और दूसरी उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। और मैं तो कहता हूं कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। भले से आप खाली करा लें। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है, और जब उसका इंसाफ होता है तो फिर वो आदमी कहीं से भी अपने को नहीं बचा पाता। Now, exactly what sense does this statement make? Of course, as far as concerns that have now been raised, Adib is also connected with us. Really, Adib, what is the point exactly of making such a statement? If you want to raise questions, then you can raise questions on the government. You can raise questions over when it comes to the human tragedy. There are other factors as well that many experts have also been talking about, whether it is growing population or growing commercial establishments or felling of trees and damaging ecological system as well. All of these factors that can be discussed and debated. But communal angle, what point does it make? Well, definitely, Amita, see, S.T. Hassan from time and again has been making these kind of controversial remarks, and now when tragedy has hit Uttarakhand, he is making such a controversial remark. He's calling it the way of delivering justice, or the God's way of delivering justice. So this is how S.T. Hassan is taking this incident, which is a very unfortunate incident. So many people lost their lives in this tragic incident. And S.T. Hassan is giving a communal angle to this. However, the BJP has hit out at S.T. Hassan. They are calling the remark given by S.T. Hassan a disgusting remark. They say that Akhilesh Yadav should take action against S.T. Hassan, and these kind of remarks shows the mentality and ideology which Samajwadi Party follows. All right, let's put that out exactly how the BJP has now been reacting, because now they have been coming out to condemn when it comes to the Samajwadi Party Neta's remarks and asking whether the leadership of the party would be initiating action against him, or would they be maintaining distance from their own Neta's statement, because his remarks on Uttarkashi disaster has called the BJP, which has come out to say that these remarks are insensitive and divisive, claiming that natural disasters cause pain to all of the humanity, and has now accused the Samajwadi Party and the Neta of encouraging such statements instead of punishing them. समाजवादी पार्टी की जो सबसे निम्न स्तर की वोट बैंक की राजनीति है, उसका चेहरा फिर से देखने मिला है। मतलब कि हिमाचल और उत्तराखंड पर जब इतनी बड़ी त्रासदी आई है, तो उनके जख्मों पर इस प्रकार से गलत आरोप, सांप्रदायिक आरोप और वोट बैंक से प्रेरित आरोप लगाकर उनको अपमानित करना और नमक रगड़ना, ये समाजवादी पार्टी की सोच बन चुकी है। ये वो पार्टी है जिसने आतंकियों का भी धर्म देखकर उनको छुड़वाने की कोशिश की। ये समाजवादी पार्टी का असली चेहरा है। प्राकृतिक आपदाएं दुखदायी होती हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में जो भी प्राकृतिक आपदा है, निश्चित तौर पर यह मानवीय मानवता के लिए बेहद कष्टदायी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद S.T. हसन इन दुख पर और नमक मिर्च लगाने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बात को भी वो मजहबी खांचे में देख करके लोगों के दुख को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी जानबूझ करके ऐसे सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि ऐसी बातों के लिए उनको सम्मानित और प्रोत्साहित करने का काम करती है। शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी के ऐसे सांसद पर, जिसकी सोच इस तरह की है कि वो प्राकृतिक आपदा में भी मजहब ढूंढने का काम करते हैं। And even now, remember, the rescue and relief operations are still going on. It's been 4 days now ever since this tragedy has happened. And when we took up that question to Samajwadi Party Neta's ally, this is exactly how the Congress party has now reacted. I don't agree, and I strongly condemn such statements. We should have respect for every religion, and whatever is happening in Uttarakhand, it may happen anywhere in any corner of the world.
Well, if not the Samajwadi Party, then at least the Congress Party seems to be taking a stand and has now distanced itself from its own party allies' statement saying that all religions must be, respective. But at this time, at this juncture, when the relief and rescue operations are still going on, and this is the bravery that has been shown by a brave Jawan, several teams that are also there deployed in massive numbers to carry out the relief and rescue operations. However, the sensitivity of the situation that has been owing across when it comes to the entire country that has been mourning the loss of 5 people who unfortunately lost their lives. However, here is a neta from a political party who seems to be injecting a communal angle. अमीक जमाई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमीक जमाई जी, आपके पार्टी के नेता एसटी हसन कहते हैं कि किसी फेथ को इंसल्ट किया गया है और उसकी वजह से भगवान ने ये किया है। अगर उत्तरकाशी में जो फ्लड हुए हैं जिसमें 5 लोगों की जानें गई हैं, वो कह रहे कि भगवान को अगर आपने माना नहीं तो उसकी वजह से भगवान ने खुद दंड दे दिया। नहीं, देखिए, उनके बात को थोड़ा सा तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है। बात का देखिए मकसद ये है कि सबसे पहले उत्तराखंड देवभूमि है, हमारे भारत की हजारों साल की संस्कृति का एक केंद्र है। आखिर क्या बात है कि हिंदुत्व के नाम की जो सरकार है वहां की, एंटी मुस्लिम एजेंडे पे चलने वाला जो मुख्यमंत्री है वहां का, क्या बात है कि हमारे पहाड़ दरक रहे हैं, क्या बात है कि जोशीमठ बैठ रहा है, क्या बात है कि जो आपदाएं हैं, क्योंकि आप जल जंगल जो जमीन है वहां की, नंबर 1 लूटने का काम, नंबर 2 पहाड़ों को खोखला बनाने का काम। पर अमीक जमाई जी, जब कोई आपदा या त्रासदी आती है, क्या वो किसी का धर्म या मजहब देखकर आती है? मैं इस बात से बिल्कुल किसी की भी बात से सहमत नहीं हूँ। उनकी बात को दूसरे परिप्रेक्ष्य में लिया जा रहा है। मुझे लगता है उनकी बात को दोबारा समझने की जरूरत नहीं। बट वो जब बोल रहे हैं कि किसी की मजहब को अगर इंसल्ट किया गया है तो इसमें मजहब की बात कहाँ जैसे जाती है? बिकॉज यहाँ पे त्रासदी की बात हो रही है, लोगों की जाने गई है। अब ये सामने थोड़ी आ रहा है कि वो कौन से मजहब या कौन से वो भारतीय हैं, उनको बचाना जरूरी है। आप नोट करिए कि कुदरत हमसे नाराज है। कुदरत कौन है? हम भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। आप बताइए कि 20,000 करोड़ रुपए प्रयागराज में पलट दिए गए। क्या हाल है प्रयागराज का? आज वहां पे बोट चल रही है, गोरखपुर में बोट चल रही है। क्या बात है कि हमारे जो पहाड़ हैं, अभी जो हालिया मामला आया उत्तराखंड का, वहां पे लोगों ने जो कंपनसेशन दिया गया वहां के गरीब लोगों को 5-5 हजार रुपए कंपनसेशन दिया जा रहा है। नहीं, ये बात आप सवाल उठा सकते हैं अमीक जमाई जी, ये सवाल आप उठा सकते हैं कि वहां पर अगर इतना अर्बनाइजेशन हो रहा है, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हो रहे हैं, पेड़ों को अगर काटा जा रहा है, वहां पे बार बार लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, आप उसके ऊपर ये आपका पूरा हक बनता है, आप ये सवाल उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मजहब को इंजेक्ट करने का वो मतलब आखिरकार समझ में नहीं आता। आप कह रहे हैं कि आपके नेता के जो कॉमेंट्स हैं, आपके जो पार्टी कॉलीग के जो कॉमेंट है, उन्हें ट्विस्ट किया गया है। लेकिन आपकी सहूलियत के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए भी हम एक बार फिर से सुना देते हैं कि एसटी हसन साहब ने कहा क्या था। लेट्स प्ले दैट आउट। ये आपदाएं क्यों आ रही हैं आखिर? तभी हमें इस बात पे विचार करना चाहिए। हमने जंगलों के साथ बड़ी नाइंसाफी करी, जंगलों को कटान और तमाम चीजें हो रही हैं। और दूसरी उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। और मैं तो कहता हूं कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। भले से आप खाली करा लें, इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है। और जब उसका इंसाफ होता है तो फिर वो आदमी कहीं से भी अपने को नहीं बचा पाता। अमीक जमाई जी, बुलडोजर की बात कहां से आ जाती है सर? अब आप इसको जस्टिफाई करेंगे? मैं देखिए, हमारे अयोध्या जी में सैकड़ों पुरातन हिंदुओं के घरों पर बुलडोजर चलाए गए। वाराणसी में हजारों साल के पुरातन मंदिरों पर बुलडोजर चलाए गए। भारतीय जनता पार्टी ने चलवाई ना। हमारे भगवान है वो। तो इसका मतलब अगर लोगों के साथ अन्याय होता है तो तभी त्रासदी आती है, तभी इंसाफ होता है, और भगवान खुद ये इंसाफ करते हैं उन लोगों के खिलाफ। देखिए, हम जो लोग भगवान को नहीं मानते तो हम कुदरत को मानते हैं, हम उसको नेचर का नाम देते हैं। क्या बात है कि नेचर हमसे बदला ले रही है। आप जौनपुर में गोमती नदी आप जानते हैं, उसका रुख मोड़ा गया। रुख मोड़ा जाएगा तो बदला नहीं लेगा कुदरत हमसे। प्रयागराज में नदियों का रुख मोड़ा गया। कौन नदियों का रुख मोड़ता है? जरा मुझे आप किसी बड़े एनवायरमेंटल के जो आपके यहाँ लोग बैठते हैं उनसे एक बार पूछिए
लेकिन ये अमित जी भाई जी, भारतीय ये जनता सवाल पार्टी हमने थोड़ी देर नदियां पहले मोड़ रही राशिद है। अलवी जी से भी पूछा। कांग्रेस पार्टी के हैं, आपके एलाय भी है, लेकिन एसपी के जो नेता हैं, आपकी पार्टी के नेता, वो उत्तराखंड देवभूमि के साथ हिमाचल प्रदेश का भी नाम साथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, सारे धर्मों सारे मजहबों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमारा सबका रिस्पेक्ट, लेकिन हमारा ये कहना है जो कुछ जोशीमठ में हुआ, जोशीमठ में तो कोई दूसरे मजहब के लोग रहते नहीं। सरकार, मुख्यमंत्री वहां की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कॉर्पोरेट फोर्सेस के साथ मिलकर पहाड़ों को खोखला करने का काम, पहाड़ों पे शहर बनाने का काम, गांव आप बर्बाद कर रहे हैं और शहर में आप गांव ढूंढ रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं, ये बहुत ही संजीदगी का मुद्दा है। जो तो यही सवाल उठाइए ना अमित जी, यही सवाल उठाइए। ये तो पर्टिनेंट क्वेश्चंस है। आप विपक्ष में हैं, आपको ये सवाल उठाना तो बनता है, आप उठाइए ये सवाल। हमारा ये कहना है, लेकिन ये कहना कि उनके साथ इंसाफ इसलिए हुआ है क्योंकि किसी के धर्म को इंसल्ट किया गया है, ये कहाँ का न्याय है? नहीं, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, ये तीनों एक हैं, अलग नहीं हैं जी। क्यों आप गलत कर रहे हैं? क्यों भगवान नाराज हैं? क्यों ईश्वर नाराज है? क्यों आप उसकी बनाई हुई रचना से खेल रहे हैं सिर्फ चंद पैसों के लिए, चंद टुकड़ों के लिए, चंद कॉर्पोरेट फोर्सेस के लिए? नदियां मोड़ रहे हैं आप, गंगा जी को मोड़ रहे हैं, गोमती जी को मोड़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। एसटी हसन साहब को आप दबाकर इस सवाल को नहीं दबा पाएंगे कि एनवायरमेंट के साथ, नदियों के साथ। तो शायद उनका बोलने का तरीका अलग था, बट उनको क्या बोलना था वो ये था, सरकार के ऊपर सवाल उठाना था कि आखिरकार अगर ये सारी जो मिसगिविंग्स हो रही हैं उसकी वजह से ये रिजल्ट आ रहा है। लेकिन आखिरकार इसमें पहले भी मजहब या धर्म को इंक्लूड करना आखिरकार क्या जरूरी था, ये सवाल अभी भी बाकी है। अमित जमाई जी, थैंक यू, आपको यहाँ अपने जो सफाई दी अपने पार्टी की तरफ से और अपने पार्टी नेता की तरफ से, बट ही स्टिल कंटिन्यूज टू मेंटेन दैट दिस इज अ कंपैरिजन rather that is now being drawn. When we speak of religion, this is something that can be said at par when we speak of nature's fury, because nobody exactly can control the nature's fury, and this is exactly what has now been witnessed in Uttarkashi when it comes to 5 people unfortunately having lost their lives. But let's in the meantime shift focus